الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین و سامعین گرامی، ہم اپنے اس چینل کی وساطت سے قرآن کریم کے درس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی سب سے آخری کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا، ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنت رسولی، کہ اے لوگو میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک کتاب ہے اللہ کی کتاب اور دوسری اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم کی تعلیم دیں اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں اور قرآن کریم کی تعلیم دوسرے لوگوں کو بھی دیں۔ تو قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور تمام مسلمانوں کی ہدایت کا منبع اور سرچشمہ قرآن کریم ہے، اور تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے والی اگر کوئی کتاب اس دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ کلام اللہ ہے، قرآن کریم ہے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنا اور سننا اور قرآن کریم کو سمجھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونے والوں کے لیے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف دو لوگ ایسے ہیں کہ جن سے حسد کرنا جائز ہے، اور حسد سے مراد یہاں پر رشک ہے، یعنی دو لوگوں کے بارے میں یہ تصور اور خیال کرنا کہ کاش جو دولت جو نعمت ان کو ملی ہے وہ نعمت ہمیں بھی مل جائے۔ وہ دو لوگ، ایک وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی نعمت دی ہے اور وہ دن رات اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جڑنا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھنا، یہ ہر مسلمان کا ایک مذہبی فرض بھی ہے، اور مسلمان کی یہ دلی خواہش بھی ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق قرآن کریم کے ساتھ ہو۔ اور اس مصروفیت کے دور میں جب ہر آدمی اپنے روزگار کی مصروفیات میں اور دنیاوی مصروفیات میں اتنا مشغول ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا ہے، جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ معزز ہوئے حامل قرآن ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی آج کا مسلمان اگر اس بات پر غور کرے کہ ہم آخر اتنی پستی کے اندر مبتلا کیوں ہیں، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر ان کی عزت، ان کے مرتبے اور شرف کی وجہ کیا ہے، تو صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ وہ حضرات قرآن کریم سے وابستہ تھے اور ہم قرآن کریم سے دور ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے کو ہم صرف اپنی ہدایت کے لیے اور مسلمانوں کی عمومی ہدایت کے لیے، اور ہم مسلمانوں
को आपस में मुत्तहिद और मुत्तफिक रखने के लिए इस सिलसिले का आगाज करने जा रहे हैं, क्योंकि कुरान करीम ही वो सरचश्मा और मंबा है जिस पर तमाम मुसलमानों को जमा किया जा सकता है। और इस सिलसिले की आज ये पहली कड़ी है और आप हजरात के सामने इस वक्त मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की है। सूरह फातिहा कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है। नुज़ूल के एतबार से इसका दूसरा नंबर है, तरतीब के एतबार से ये पहले नंबर वाली पहली सूरत है। और कुरान करीम में सबसे पहले इस सूरत को रखा गया, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरह फातिहा है। फातिहा का माना खोलने वाली, आगाज करने वाली, यानी चूंकि कुरान करीम का आगाज इस सूरत से हो रहा है, इसलिए इस सूरत का नाम सूरह फातिहा रखा गया। इसके अलावा भी इस सूरत के दूसरे नाम भी हैं जो कि अहादीस के अंदर मज़कूर हैं। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर के अंदर सूरह फातिहा के 12 नाम गिनवाए हैं, जिनमें से एक नाम सूरह शिफा भी है। सूरह शिफा इसको इसलिए कहा जाता है कि इस सूरत से अल्लाह रब्बुल इज्जत शिफा अता फरमाते हैं। हदीस के अंदर आता है कि एक दफा सहाबा किराम किसी सफर पर जा रहे थे, रास्ते में किसी आदमी को सांप ने काट लिया, तो किसी ने आकर कहा कि क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो दम करना जानता हो? तो एक साहबी ने कहा कि हम दम करना जानते हैं। चुनाचे उन्होंने सूरह फातिहा की तिलावत पढ़कर उस पर दम किया तो सांप के जहर का असर खत्म हो गया। तो इसीलिए इसका नाम सूरह शिफा भी है और इसका नाम उम्मुल कुरान भी है। उम्मुल कुरान का माना कुरान की बुनियाद, कुरान का उसूल। तो उम्मुल कुरान इसको इसलिए कहा गया कि पूरे कुरान करीम का खुलासा इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है। और इस सूरत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद कुरान करीम के अंदर एक मकाम पर फरमाया, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल कुरआनिल अज़ीम। ए महबूब, हमने आपको 7 आयात और बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयात और कुरान करीम हमने अता किया है। तो ये कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है तरतीब के एतबार से और नुज़ूल के एतबार से ये दूसरी सूरत है। सूरह फातिहा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हम्दो सना के साथ शुरू किया है। हम अपनी आसानी के लिए इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सूरह फातिहा की कुल 7 आयात हैं, जिनमें से पहली 3 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हम्दो सना बयान फरमाई है और फिर चौथी आयत के अंदर अल्लाह और बंदे के दरमियान जो ताल्लुक है उसका जिक्र है और 5वीं से लेकर 7वीं आयत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा और कुरान करीम का जो अहम मकसद है वो इसके अंदर बयान फरमाया है। तो अब हम इसके तर्जमे की तरफ आते हैं। फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। अर्रहमानिर्रहीम, बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक है। आज के दर्स में हम सिर्फ इन्हीं 3 आयात पर बहस करेंगे और 3 आयात के मफहूम को समझने की कोशिश करेंगे। सूरह फातिहा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी हम्दो सना से शुरू किया है और इसमें ये दर्स है कि जब भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने बंदा अपनी कोई ज़रूरत रखे, अपनी कोई हाजत रखे और अल्लाह ताला के सामने दुआ करना चाहे तो सबसे पहले अल्लाह ताला की तारीफ करे। हदीस के अंदर आता है कि एक आदमी ने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ की और दुआ उसने सिर्फ अपने लिए की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया कि इस आदमी ने जल्दी की। फिर उस आदमी को अपनी तरफ बुलाया और उससे यह फरमाया
कि देखो दुआ करने का तरीका यह है कि सबसे पहले अल्लाह ताला की सना बयान करो और उसके बाद अल्लाह के नबी पर दरूद पढ़ो और उसके बाद फिर जो चाहो दुआ करो, अल्लाह ताला इस तरीके से तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाएंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह फातिहा के अंदर हमें तरीका सिखाया है कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी हाजत को रखना है तो पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करनी है। और यही तरीका हमें आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से मिलता है कि जब भी किसी काम को शुरू किया जाए तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लिया जाए। आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी अपने खुतबों का आगाज फरमाया करते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह के लफ्ज से उसका आगाज होता था कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो इससे एक अदब और तरीका मालूम हुआ कि जब भी कोई बात करनी हो, किसी को कोई पैगाम पहुंचाना हो या दुआ करनी हो तो सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की जाए। तो पहली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो इससे यह बात साबित हुई कि तारीफ के लायक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, अपनी तारीफ को जिस लफ्ज से ताबीर फरमाया है वो हम्द है। यानी हम्द का लफ्जी माना तारीफ है। हम्द के अलावा भी अरबी जबान के अंदर बेशुमार अल्फाज ऐसे हैं जो तारीफ के माना पर दलालत करते हैं, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन लफ्ज जिसका अल्लाह ताला ने इंतखाब फरमाया है वो हम्द का लफ्ज है। क्योंकि हम्द का माना यह है कि किसी की इख्तियारी सिफात के ऊपर उसकी तारीफ की जाए। तो हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए हो सकती है, हम किसी और के लिए नहीं हो सकती। ना किसी नबी की हम्द हो सकती है, ना किसी वली की हम्द हो सकती है और ना किसी आम इंसान की हम्द हो सकती है। क्योंकि हम्द का माना यह है कि किसी की इख्तियारी सिफात पर उसकी तारीफ की जाए और इख्तियारी सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। बकिया अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं, चाहे अंबिया अलैहिस्सलाम हो, चाहे औलिया हो, चाहे हुजूर के सहाबा हो या कोई आम इंसान हो, अगर किसी के अंदर कोई अच्छी सिफत है, कोई अच्छी बात है तो वो अच्छी बात अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता की गई है, उसकी इख्तियारी सिफत नहीं है। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की हो सकती है। और हम का एक माना तफसीरों के अंदर यह बयान किया गया कि हम सिर्फ कामिल सिफात वाले की जा सकती है, यानी सिर्फ ऐसे शख्स की कि जिसके अंदर सिफात कामिल हो, और कामिल सिफात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की हैं। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह यानी हम जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की होगी, अल्लाह के सिवा किसी और की हम्द नहीं होगी। हम्द के मुकाबले के अंदर एक और लफ्ज अरबी जबान के अंदर इस्तेमाल होता है जिसको मदह कहा जाता है। उर्दू में भी यह लफ्ज बोला जाता है कि मदह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह बयान करते हैं। मदह का माना यह है कि किसी की तारीफ ऐसी सिफात पर की जाए जो कि उसकी इख्तियारी सिफात ना हो। यानी हम आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुस्न और जमाल की मदाह करते हैं, आपके दीगर कमालात की मदाह करते हैं। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का मतलब ये हुआ कि तमाम तारीफें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। यानी पूरी कायनात के रब अल्लाह ताला हैं, पूरी कायनात के रिज़्क़ अता करने वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत हैं। और रब का इतलाक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर होता है, क्योंकि रब का माना है तरबियत करने वाला, परवरिश करने वाला, रिज़्क़ अता करने वाला, और रिज़्क़ अता करने वाले, तरबियत और परवरिश करने वाले सिर्फ अल्लाह ताला हैं। अलबत्ता मजाजी तौर पर मखलूक पर भी इसका इतलाक किया जा सकता है। जैसे वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कोई तरबियत करने वाला है और परवरिश करने वाला है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। और आलमीन का लफ्ज इस सूरत के अंदर आया। आलमीन आलम की जमा है जिसका माना है दुनिया। मुफस्सिरीन कराम ने फरमाया
کہ اس دنیا کے اندر 18,000 عالم ہیں، یعنی عالم سے مراد ایک جہاں ہے، ایک دنیا ہے۔ مثال کے طور پر انسانوں کا ایک الگ جہاں ہے، جانوروں کا ایک الگ جہان ہے، اور فرشتوں کا ایک الگ جہان ہے، پرندوں کا ایک الگ جہان ہے، مچھلیوں کا ایک الگ جہان ہے، جنات کا ایک الگ جہان ہے۔ اس طریقے پر احادیث کے اندر آیا ہے کہ 18,000 عالم ہیں، اور 18,000 عالم کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب کی تربیت کرنے والے، سب کو رزق عطا کرنے والے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور رحمان اور رحیم دونوں کا بنیادی طور پر معنی رحمت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے رحمت کی صفات کے مالک ہیں، اور رحمان اور رحیم دونوں کے معنی میں رحمت ہے، البتہ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ رحمان کا معنی ہے کہ دنیا کے اندر رحمت کرنے والا، اور رحیم کا معنی یہ ہے آخرت کے اندر رحمت کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق دنیا میں رحمان ہیں اور آخرت کے اندر رحیم ہوں گے۔ دنیا میں رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اور کافروں دونوں کو رزق عطا کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کسی کے اندر یہ فرق نہیں کرتے کہ یہ میرا ماننے والا ہے، یہ میرا ماننے والا نہیں ہے، یہ میری عبادت کرتا ہے، یہ میری عبادت کرنے والا نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمت سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے اندر جن لوگوں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کا صلہ اور ان کی محنتوں کا صلہ ان کو عطا فرمائے۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر فصل جب پک جاتی ہے تو فصل کا حق یہ ہوتا ہے کہ اب اس کو کاٹا جائے اور بھوسے کو اصل فصل سے الگ کیا جائے، یعنی جیسے جب گندم کی فصل کاٹی جاتی ہے تو پھر بھوسے کو الگ کر دیا جاتا ہے اور گندم دانے کو الگ کر دیا جاتا ہے، اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو الگ کر دیں گے۔ ایمان والوں کی مثال گندم کے دانے کی ہے، اور بھوسے کے ڈھیر کو الگ کر دیں گے، بھوسے کے ڈھیر کی مثال کافروں کی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی تقاضا ہوگا کہ قیامت کے دن کافروں کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے اور ایمان والوں کو جنت کے اندر داخل کیا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کا پورا مظاہرہ ہو۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت اتنی رحمت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے اوپر بھی اتنی ان کی رحمت ہوگی کہ کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اگرچہ عذاب ضرور ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا عذاب جتنا ان کو دے سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک حد تک ہی ان کو عذاب دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں مہربانی کافروں اور مسلمانوں سب کے لیے ہے، اور آخرت میں صرف ایمان والوں کے لیے مہربانی ہے، اور البتہ کافروں پر اس درجے میں مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو عذاب کو اتنا زیادہ کر سکتے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس انتہا کو ایک حد تک ہی رکھتے ہیں، اور اپنی قدرت کاملہ کو اس حد تک نہیں لے جائیں گے کہ وہ قوت اور قدرت جو ہے اور وہ عذاب جو ہے اتنا زیادہ بڑھ جائے کہ وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی تاب نہ لا سکے۔ اگرچہ وہ عذاب یعنی آخرت کا عذاب قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے مطابق عذاب علیم ہوگا، عذاب عظیم ہوگا، جو انسان کی برداشت سے باہر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو جتنا عذاب کافروں کو دیا جا رہا ہوگا اس سے بھی بڑھ کر عذاب ان کو دے سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی کافروں پر آخرت میں بھی رحمت ہوگی، اگرچہ ظاہری اعتبار سے آخرت میں کافروں پر کوئی رحمت نہیں ہوگی۔
इसके बाद फरमाया कि मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह ताला रोजे जजा के दिन के मालिक हैं, यानी क़यामत के दिन के अल्लाह ताला मालिक हैं। मालिक का माना यह है कि जो किसी चीज की मलकियत रखता हो। कुरान करीम की सबसे आखिरी सूरह सूरह नास के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने बारे में फरमाया मलिक नास, कि अल्लाह ताला लोगों के बादशाह हैं। तो अल्लाह ताला मलिक भी हैं और मालिक भी हैं। मलिक का माना बादशाह है और मालिक का माना मालिक है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मालिक का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि बादशाह अगरचे इख्तियार रखता है और बादशाह के पास एक सल्तनत होती है और वो सल्तनत के तहत पूरी रियाया के ऊपर एक इख्तियार और एक कुदरत रखता है, लेकिन इसके बावजूद जब उसकी रियाया एक हद से आगे बढ़े तो बादशाह उनके ऊपर एक कानून के मुताबिक और एक ज़ाब्ते के मुताबिक ही कानून आयद कर सकता है और उनको सजा दे सकता है। और इसके मुकाबले में जो मालिक होता है, मालिक अपनी मलकियत वाली चीज से जो चाहे सलूक कर सकता है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन के मालिक हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के हाथ में हर चीज की मलकियत होगी, हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार के अंदर होगी। और अल्लाह ताला अगरचे दुनिया में भी मालिक हैं, लेकिन आखिरत के दिन अल्लाह ताला की ये मिल्कियत का खुसूसी तौर पर इजहार होगा और उस दिन जो है कोई अल्लाह ताला की कुदरत के सामने अपनी मिल्कियत का इजहार नहीं कर सकेगा, अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकेगा। तो इन तीन आयात से अल्लाह ताला की बुजुर्गी और बंदगी का इजहार होता है। तो हम यहाँ पर अपने इस दर्स को ख़त्म करते हैं और आइंदा इंशाअल्लाह दर्स के अंदर हम अगली आयात के ऊपर बहस करेंगे और तफसीर के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप हजरात इसको पूरे ध्यान के साथ सुने और अगर कोई बात काबिल इस्लाह नजर आए, कोई कमी बेशी नजर आए तो आप कमेंट्स के अंदर हमें बता सकते हैं। इसके अलावा आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स के अंदर कर सकते हैं और अगर कोई बात आपके ख्याल के अंदर मुफीद हो तो आप जरूर हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। आपकी कीमती राय हमारे लिए इंतहाई अहमियत रखती है। हम आपकी राय का जरूर खैर मकदम करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।